خبرنامے میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو خبر دیں گے کہ کراچی میں ہونے والی بارش کی جو مسلسل 6 روز سے جاری ہے، آج ضلع جنوبی میں طوفانی بارش نے کئی علاقے ڈبو دیے۔ ایم اے جناح روڈ پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع رہا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے دفتر کے سامنے بھی دریا بہتا نظر آیا چندری گڑھ روڈ پر بھی بارش کے پانی نظر آیا اور یہ روڈ پانی میں ڈوبا رہا۔ لیاری کی سڑکیں بھی پانی میں غائب ہو گئیں۔ آج سب سے زیادہ بارش پی ایف بیس مسرور میں 59 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں مونسون کے پہلے اسپیل نے شہر بھر میں جل تھل کر رکھا ہے۔ شہر میں مسلسل چھٹے دن بھی بادل برسے تو سندھ حکومت کے نالوں کی صفائی کے دعوے پانی کے ساتھ ہی بہہ گئے۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر واقع پاکستان کی وال اسٹریٹ وینس بن گئی۔ ضلع جنوبی کے نالے ابل پڑے اور نکاسی آب کا نظام بیٹھنے سے شہر کا تجارتی ہب دریا بن گیا۔ ٹاور سے لے کر جنگ پریس تک آئی چندری گڑھ روڈ پر گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ڈوب گئی۔ شہریوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو اداروں کو کشتیاں چلانا پڑی۔ دیکھو برا حال ہے، ان کو اپنے اپنے ووٹوں کی پڑی ہوئی ہے، روڈوں کا کوئی نہیں سوچتا۔ ہر سال ایسا ہوتا ہے، بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ اس روڈ پہ ہمارا پاکستان کا یہ معاشی ہب ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے، آپ دیکھ لیں۔ گھڑوں سے ہمیں محفوظ رکھ لیں مرتضیٰ باپ صاحب، اللہ ان کا بھلا کرے گا، دعا کر سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ بارش میں پھنسے شہریوں کے لیے متاثرہ علاقوں سے نکلنا امتحان بن گیا۔ آئی چندری گڑھ روڈ پر 2 ایمبولینس بھی بارش کے پانی میں خراب ہو گئی۔ رین ایمرجنسی کے دعوے دھرے رہ گئے اور ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب کے دفتر کی ایمٹی بلڈنگ کے سامنے سڑک بھی ڈوب گئی۔ لائٹ ہاؤس سے ٹاور جانے والی ایم اے جناح روڈ پہ نظام زندگی معطل ہو گیا۔ ایم اے جناح روڈ پر بارش کے پانی کے باعث گڑھا پڑنے سے مسافر کوچ پھنس گئی۔ ضلع جنوبی کے گنجان آباد علاقے برس روڈ کی دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ نیو چالی اور پیپر مارکیٹ کے نالے بھی ابل پڑے اور شارع لیاقت پانی پانی ہو گئی۔ کوٹ روڈ مکمل زیر آب آنے سے برساتی پانی میں درجنوں موٹر سائیکلیں خراب ہو گئی۔ حقانی چوک کے رہائشی علاقے میں بھی پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہو گیا ہے اور قربانی کے جانور پانی میں کھڑے ہیں۔ کراچی میں آیا چندری گڑھ روڈ پر بارش کا پانی تاحال جمع ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کا کام شروع کرنے کے بعد پانی کی سطح میں کچھ کمی آنے لگی ہے۔ وہیں پر ہی موجود ہیں ہماری نمائندہ زمزم سعید، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ زمزم، آپ مسلسل یہاں سے ہمیں رپورٹ کر رہی ہیں، اب جبکہ رین ایمرجنسی کا عملہ یہاں پر آیا ہے اور ان کی جانب سے یہاں پر کام کیا بھی جا رہا ہے، تو آپ سے بالکل یہ بھی جانیں گے کہ کب تک اس روڈ کو کلیئر کیا جا سکے گا۔ لیکن آئی چندری گڑھ روڈ، اس کی صورتحال ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ بارش ہوئی اور بارش کے بعد یہاں پر ہر جگہ پانی ہی پانی تھا۔ لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو لوگ باہر تھے، جو لوگ یہاں سے گزر رہے تھے، انہیں یہاں سے گزرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ وقت تو ایسا بھی آیا کہ یہاں پر کشتیاں بھی چلی، کشتی چلائی گئی، لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جانے لگا۔ تو زمزم، یہاں پر نکاسی آب کا سلسلہ اب شروع کر دیا گیا ہے، کیا کہنا ہے انتظامیہ کا، کب تک اس روڈ کو کلیئر کر دیا جائے گا؟ جی دیکھیں ارم، آپ سے کچھ دیر قبل کی اگر ہم صورتحال آپ کو دکھائی تھی، بہت ہی زیادہ بری صورتحال تھی، اتنی زیادہ بری کہ عیدی رضاکار جو ہے یہاں پر کشتیاں لے کر آ گئے تھے اور خواتین اور بچوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا، محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ لیکن ابھی اگر کرنٹ سچویشن کی میں بات کروں تو نکاسی آب کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے عقب میں یہ مناظر دیکھیں، اب پانی تو بالکل ہے، پانی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پانی چلا گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس پانی کو جتنا زیادہ پانی تھا اب اسے کم ہونے میں تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹاور والے ٹریک کی، تو ٹاور والا جو ٹریک ہے جو کہ ٹاور کو جا رہا ہے وہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، لیکن شائن کمپلیکس جانے والا ٹریک جو ہے وہاں پر ابھی بھی پانی موجود ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفینس کے علاقے کی، تو ڈیفینس بھی اس وقت بالکل جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے، 2 دریا کا مقام، کلفٹن سب کلیئر ہو چکا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جو ہے آئی چندری گڑھ روڈ سمیت جو چند ایک علاقے ہیں جیسے صدر کا علاقہ، ابھی وہاں پر نکاسی آب کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر میں موسم کی اپڈیٹ دیتی چلوں تو دھوپ تو اس وقت نکل آئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق ایکسپیکٹڈ ہے کہ شام میں ہو سکتا ہے کہ اب سے 1-1.5 گھنٹے بعد ایک مرتبہ پھر سے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ زمزم سعید اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ آپ کا۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں بارش کے بعد بیشتر عیدگاہوں میں بھی پانی بھر گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے سما کے نمائندے محمد علی حفیظ۔
जी बिल्कुल, कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में बादल खुल के बरसे हैं। यही वजह है कि हर तरफ जो है पानी ही पानी है। ईद के इज्तिमा की अगर हम बात कर लें, कहा गया था कि रेलवे स्टेडियम में जो है ईद की नमाज, ईद का इज्तिमा जो है ठीक सुबह 6:15 बजे होगा, लेकिन इस वक्त हम ईदगाह यहाँ मौजूद है रेलवे स्टेडियम में। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखाएंगे, हर तरफ पानी ही पानी है। सूरत हाल बहुत बुरी है। अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात कर लें हम, रंग छुराइन के अंदर 4 मकामात पर जो है जो खुले मकामात हैं वहाँ ईदगाह है, वहाँ ईद की नमाज होनी थी, लेकिन वहाँ भी अब तक सूरत हाल है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, दीगर बंस रोड पे आरामबाग पार्क है, वहाँ भी बाहर के हिस्से में भी जो है ईद की नमाज होती है, वहाँ भी पानी जमा है, पानी वहाँ नमाज नहीं हो सकेगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें सिटी रेलवे स्टेशन की तरफ जो खुले मकामात हैं, खादर, मिठदर, जो डिस्ट्रिक्ट साउथ में खुले मकामात हैं, वहाँ पर ईद की नमाज जो सूरत हाल है पानी की, जहाँ अब तक सूरत हाल दिखाई दे रही है, वहाँ पर ईद के इज्तिमात नहीं होंगे। हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे आइए चंडीगढ़ रोड रेलवे स्टेडियम, जहाँ पर पाकिस्तान चौक, अकानी चौक वाले, बंस रोड वाले सब इस रेलवे स्टेडियम में आते हैं। यहाँ ईद की ईदगाह बनती है, ईद की नमाज होती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि पानी मौजूद है और इंतजामिया भी दूर दूर नजर नहीं आ रही। यहाँ पर ईद के इज्तिमात जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में बेशतर मकामात पर जो है वो नहीं हो सकेंगे। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए। कराची में बारिश का पानी जमा होने के बायस जहां लोग परेशान हैं, वहीं इस मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं और गर्मा गर्म कचौरियां खा रहे हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अहमद रहमान खान से। तो अहमद, इस किस तरह से जो है वो शहरी इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को? जी जनाब, बिल्कुल इस वक्त बारिश की वजह से बहुत से मकामात पर पानी खड़ा है, तो लोग परेशान भी हैं, लेकिन ऐसे में लोग उसको एंजॉय भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त जो है वो हक्कानी चौक के करीब मौजूद हैं और यहाँ पर कचौरी के स्टॉल पर जो है वो बेहद रश हमें दिखाई दे रहा है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, कचौरियाँ जो है वो ख़रीद रहे हैं और हम खुद भी जो है वो खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इस मौसम में अच्छा लगता है। जनाब, लोगों से ही बात करते हैं। सर, कचौरियाँ खरीदी हैं आपने, क्यों, वजह क्या है? बारिश का मौसम है, इस वजह से खरीदी। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ताकि टेस्ट आए और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। मौसम इतना अच्छा हुआ है, कचौरियाँ खाने में बड़ा मज़ा भी आता है। जी बिल्कुल, कचौरियों के ख़रीदार जो है वो इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं। लोग बड़ी तादाद में जो है वो आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, इसलिए वो दूर से इशारा कर रहे हैं, तो ये वजह है। लेकिन गर्मा गर्म कचौरी जो है वो बारिश के मौसम में वाकई बहुत मज़ा देती है। अभी हमने भी ट्राई किया है। जी, अहमद रहमान अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी भर गया। वासा के अमले ने हैवी मशीनरी के जरिए निकासियाब का ऑपरेशन मुकम्मल किया। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 की इमारत की बेसमेंट में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात लेते हैं उमर आसिफ की रिपोर्ट में। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे ही वक्फे से बारिश हुई। मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स की छुट्टी हो गई। रावलपिंडी के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए वासा ने फौरी तौर पर हैवी मशीनरी इलाकों में पहुंचा दी। टीमों ने कई मकामात से बारिश का पानी निकाल दिया। नाला लई की भी मुसलसल मॉनिटरिंग की गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 12 फुट जबकि ग्वाल मंडी पुल पर 9 फुट रिकॉर्ड की गई। तर्जमान वासा के मुताबिक सुबह तकरीबन 6 बजे जुड़वा शहरों में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब इस्लामाबाद के सेक्टर H13 की इमारत के तहखाने में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया की टीमों ने मौका पर पहुंचकर बेसमेंट से पानी निकाला। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन भी मौका पर पहुंच गए। यहाँ पे जितने प्लाजे और बिल्डिंग बनी हुई हैं वो सारी इलीगल है और सीडीए ने तमाम को नोटिस किए हुए हैं। आज सीडीए की टीम इन तमाम बिल्डिंग्स के बेसमेंट को सील करने लगी है ताकि दोबारा यहाँ पानी ना जाए। मौसमियात ने ईद उल अजहा पर भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशनगोई कर रखी है। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी है। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाकों में पानी मुसीबत बनकर खड़ा है और इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। हर तरफ पानी ही पानी। सवाबी के इलाके ठंडकोई में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी इलाकों में पानी लोगों के घरों और दफातर में दाखिल हो गया। टोपी ज़ैदा रोड पर सैलाबी रेले से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई। कई मवेशी भी मर गए। पंजाब में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। गुजरांवाला में बारिश के बाद सैटेलाइट टाउन में घर की दीवार गिर गई। कुर्बानी का जानवर हलाक हो गया जबकि जख्मी होने वाले दूसरे जानवर को ज़िबाह करना पड़ा। फैसलाबाद में भी बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। एबटाबाद में बादलों ने धुआंधार एंट्री दी।
मलके कोहिसार भी बारिश में नहा गई। मरी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। जन्नत नजीर वादी एक बार फिर खिलखिला उठी। आजाद कश्मीर में बारिश का नया स्पेल शुरू हो गया। मोती जैसी बूंदों ने वादी नीलम, झेलम, लीपा और करना समेत कई इलाकों का हुस्न निखार दिया। मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में भी सावन की लड़ी लगने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सिंध में हमेशा की तरह इस बार भी इंतजामी लापरवाही के बाइस मुश्किलात की बरसात जारी है। सखर, टंडोला यार और खैरपुर में जमा बारिश का पानी इंतजामी लापरवाही का सबूत दे रहा है। कराची की सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में कीमतें ज्यादा होने की वजह से बकरों की फरोख्त में कमी देखी जा रही है। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। देखिए, शहर में होने वाली तूफानी बारिश और जगह जगह लगने वाली मवेशी मंडियों की वजह से अक्सरियत शहरियों की जानिब से खरीदारी इस बार सरागोड में नहीं की गई। मैं इस वक्त बकरा मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ सूरत हाल ये है कि जो है ख़रीदार कम है, बकरे ज़्यादा है। मेरे कैमरामैन कामरान आपको दिखाएंगे। इस वक्त आपको मंडी में बकरे ही बकरे नज़र आ रहे होंगे जो गुज़िश्ता साल इस वक्त तक काफ़ी हद तक बिक चुके थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ख़रीदार ज़्यादा है नहीं है और बकरे ज़्यादा है। कुछ व्यापारियों से हमारी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर सूरत हाल क्या है। बारिश की वजह से मंडी चली नहीं है। 10-12 दिन से हम रुके हुए हैं, हम इधर ही बैठे हुए हैं और इधर का महंगाई जो है ना बहुत है। चारा वगैरह यहाँ पे महंगा मिल रहा है और प्लाट के पैसे लिए जा रहे हैं और जो सारा मलबा है इधर जानवर के ऊपर गिर रहा है और अभी रेट नहीं मिल रहा हमें जानवर का। अच्छा, आप कितने बकरे लाए थे और कितने बिक गए आपके? हमारे गाड़ी में 109 बकरे आए थे, अभी 30 बकरे रह गए हैं और जो बेचे हैं वो भी नुकसान में बेचे। अक्सर शहरियों ने जो रोड पर बकरा बेचने वाले हैं, जो करीबी इलाकों में बकरा बेचने वाले हैं, उनसे बकरे खरीदे हैं। तो मंडी इस वक्त जो है रेट जो की वजह से जो है ना सिर्फ महंगी है बल्कि बकरे भी यहाँ पे फरोख्त नहीं हो रहे हैं। जी, शाहनवाज अली कादरी कराची से अपडेट कर रहे थे। लाहौर की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मवेशी मंडियों में रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त दानियाल उमर एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। दानियाल, यहाँ पर रेट्स कैसे हैं? लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं जानवरों की? देखिए मारूफ, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए और रश जो है वो इस वक्त मंडी में हमें नज़र आ रहा है। व्यापारियों का ये ख्याल था कि 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो आएगी और लोग जो है वो आकर जानवरों की ख़रीदारी करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से हुआ कि रश जो है वो होना शुरू हो गया है। मैं अगर अपने कैमरामैन को कहूँ कि वो दिखा सके पीछे कि जानवर जो है वो बहुत सारे खड़े हुए हैं, लोग जो है वो आकर उनसे बार्गेनिंग कर रहे हैं व्यापारियों से। हमें पीछे जो है वो नज़र आ रहा है कि जानवर जिनमें लाए गए थे ट्रक में वो भी आहिस्ता आहिस्ता से निकल रहे हैं और अब व्यापारियों ने वापस जाना शुरू कर दिया। एक वापसी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और ये वो जानवर जो है वो व्यापारियों के पास बचे हैं जो कि 1 या 2 जानवर जो है वो किसी के बच गए हैं, किसी के 3 जानवर जो है वो बच गए हैं। तो अब जो है वो वापसी का सिलसिला शुरू हुआ है व्यापारियों का भी और इस तरह से है कि फैमिलीज भी आई हुई हैं, रेट्स यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रही हैं और कुर्बानी के जानवर भी खरीद रही हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए दानियाल। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ईद कुर्बा में अब सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है, जानवरों की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया है। शहरी जानवरों की तलाश में एक मंडी से दूसरी मंडी के चक्कर लगा रहे हैं और कीमतें कम होने की उम्मीद पर शाम होने का इंतजार भी कर रहे हैं। समा के नुमाइंदे असलम खोकर इस वक्त इस्लामाबाद में सुल्ताना फाउंडेशन के करीब कायम मवेशी मंडी में मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। तो बताइएगा इस वक्त यहाँ पर क्या सूरत हाल है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की जो सुल्ताना फाउंडेशन की जो सरकारी मंडी है वहाँ पे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद में 2 जो जिला इंतजामिया की जानिब से मंडी लगेगी, एक संजानी टोल प्लाजा के करीब और एक ये सुल्ताना फाउंडेशन के करीब। अगर मैं फासलों की बात करूँ तो बहुत ज्यादा फासला यहाँ पे भी आने का और संजानी जाने का, लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना भी है। फिर हमने देखा कि रोड किनारे छोटी छोटी मंडियां लगाई गई हैं जहाँ से लोग जानवर खरीद रहे हैं। यहाँ पे की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा रेट बताए जा रहे हैं। 15-16 किलो का जो जानवर
है बकरा है वो यहाँ पे 35 से 40 और 45 हजार में मिल रहा है, जबकि अगर 20 से 25 किलो का आपने बकरा ढूंढना है तो फिर आपकी जेब में 70 से 80 हजार रुपये होना चाहिए, क्योंकि 90,000 से 1 लाख रुपए जो उसकी डिमांड की जाती है। इसी तरह अगर मैं बछड़ों की बात करूँ, इस्लामाबाद में ज्यादा जो है वो बछड़े यहाँ पे फरोख्त होते हैं, उनकी कुर्बानी होती है, तो उसके लिए भी आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया जेब में लेके आना पड़ता है। और छोटे से छोटा बछड़ा जो है जो साल एक का होता है, अगर वो भी आप लें तो फिर उसके लिए भी आपको 1.25 लाख रुपया और 1,30,000 तक पैसे लेकर आते हैं। तो फिर तमाम लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं। इस्लामाबाद में यह है कि ईद के दिन भी लोग खरीदारी करते हो इस नियत पर और इस इरादे से कि जो व्यापारी दूसरे इलाकों से आते हैं वो दाम सस्ते कर देते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के इसके दाम सस्ते नहीं हुए। हो सकता है कि रात तक इनके कुछ दाम कम हो जाए। असलम खोकर अपडेट कर रहे थे। कोयटा की मवेशी मंडी में आखिरी रोज के बावजूद जानवरों की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी, कोयटा की मवेशी मंडियों में महंगाई का तूफान है। बकरा हो, दुम्बा, गाय या बैल, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो आप नॉर्मल बकरा ले लें वो 45, 50, 55 इससे कम में नहीं है। और बैल जो अगर हम जाते हैं बैल की तरफ जाते हैं तो जो बैल पहले 65-60 का था वो अभी 1,20,000 1,30,000 का है, मतलब दुगनी से तिगनी कीमतें बढ़ गई हैं। व्यापारी कहते हैं पेट्रोल और चारा महंगा होने के बायस कीमतें कम नहीं कर सकते। ये एयरपोर्ट है, इसका यहाँ से अभी 400 किराया ले रहे एक साइड से, 1,000-2,000 किधर, अभी इसका खुराक किधर है। गंदम 50 पे 60 पे पहले था, अभी 85 रुपये चल रहे। शहरियों ने ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मवेशी मंडियों में कीमतें कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम करे। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ समा, कोयटा। कराची में मूसलाधार बारिश ने जिला जुनूबी का नक्शा ही बदल डाला है। मेजिना रोड, बंस रोड, सदर और लियारी समेत कई इलाके पानी में डूब गए। निकासी अब का काम जारी। और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 58 तक जा पहुंची। कोयटा चमन शाहरा सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद कर दी गई। चमन का दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि श्रीलंका की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, लंकन बोर्ड के साथ राब्ते में हैं। पीसीबी के मुताबिक दौरे के हवाले से मेज़बान बोर्ड की राय पर ही आगे बढ़ रहे हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन भी लंकन बोर्ड के कहने पर मंसूख किया। दौरे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया गया। टेस्ट स्क्वाड होटल में है और मामूल के मुताबिक काम हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए कोलंबो में मौजूद है, जहाँ सियासी हालात कशीदा और मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। उधर जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंज़ो एबे की आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। उनकी मैयत टोक्यो में उनकी रिहाइशगाह पहुंचा दी गई है। पार्टी रहनुमाओं ने खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म की आखिरी रसूमात पर सियाह लिबास पहनने का फैसला किया है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शिंज़ो एबे पर फायरिंग करने वाले मुलजिम से तफ्तीश जारी है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कत्ल करने का एतराफ़ करते हुए कहा है कि उसने देसी साख्ता पिस्टल से साबिक वज़ीर आज़म पर हमला किया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार मसूद खान ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की है। अमरीकी सदर और सरदार मसूद खान के दरमियान मुलाकात ओवल ऑफिस वाइट हाउस में हुई। पाक अमरीका सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर ताल्लुकात को मजबूत बनाने का आज़म। सरदार मसूद खान ने कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात बाइस एजाज़ है। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने रेस्टोरेंट में बदतमीज़ी करने वाली फैमिली के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी ना की गई तो मुल्क खाना जंगी का शिकार हो सकता है। इमरान नियाज़ी की सियासत सुबह शाम मुआशरे के अंदर इंतहा पसंदी और नफरत को फ़रोग़ देने पे मबनी है। ये जहर इस तेज़ी के साथ फैल रहा है कि अगर हमने इसका सदेबाब न किया तो मुआशरा खाना जंगी से 2 बाम दूर है। चंद अफराद जिसमें ख़वातीन और बच्चों को आगे किया गया और हुल्लड़बाजी कराई गई, मैंने इस कानूनी कार्रवाई से इज्तनाब का फैसला किया है। इमरान नियाज़ी ने आज तक लोगों को इस्तेमाल किया है, टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया है।
जहांगीर तरीन इसको अगर अपना जहाज ना देता तो ये आज भी धक्के खा रहा होता, सियासत के अंदर इसकी हुकूमत न बन सकती। अलीम खान इसके जलसे भरने के लिए अपने वसाइल इस्तेमाल न करता तो पता नहीं इसका क्या हाल होता। मेरी अपील है सब पाकिस्तानियों से कि आप इस चेहरे को पहचानें जो हमें तकसीम कर रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं इमरान खान बताएं इन्हें कौन दीवार से लगा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। वाज़ेह कर दिया कि परवेज़ इलाही से उनका कोई इख्तिलाफ नहीं। घर में भी लाहौर में भी होती है, आप कैसे इकट्ठी पढ़नी है हमको। आज तक आपने देखा है कि मैंने चौधरी परवेज़ के खिलाफ बयान दिया या चौधरी परवेज़ ने मेरे खिलाफ बयान दिया। इलेक्शन हो रहा है वहाँ पंजाब में, फेयर होना चाहिए, जो कामयाब हो मान लेना चाहिए। पार्टी हमारे साथ बड़ी होगी, हम पार्टी के साथ। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है? हम तो नहीं लगा रहे। बार बार देखते हैं कि वीडियो इसकी वीडियो अपने इसकी वीडियो अपने कोई कहते मुझे दिखा दे, अगर मुझे दे दें। ये कोई हमारे मुल्क का ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी अब बातें शुरू हो गई हैं, हम इसे दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। और अभी आपको ये खबर दें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बरतानिया में ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम लीग नून के कायद ने मुल्क की सलामती और पाकिस्तानी अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की। नवाज शरीफ के साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार, हसन नवाज, सदर मुस्लिम लीग नून बरतानिया, ज़ुबैर गुल, उमर मानिका और नासिर जंजुआ ने भी नमाज ईद अदा की। इकबाल सिंधु, एजाज गुल, इमरान सईद, वहीद नज़ीर, असद अंसारी समेत दीगर ने भी मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के हमरा नमाज ईद अदा की। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में दुनिया के कई मुल्कों में आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम से बनाई जा रही है। हरमैन शरीफैन में रूह परवर इज्तिमात हुए और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। मुस्लिम उम्मा की खुशहाली यगानगत की दुआएं मांगी गईं। सऊदी क़यादत की जानिब से तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के पैगामात भेजे गए। अमरीका, कनाडा और बरतानिया की मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ अफराद आज और बाज़ इतवार को ईद उल अज़हा मनाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा इंसानियत और एक दूसरे का ख्याल रखने का तर्ज देती है। और अभी आपको ये बताएं कि मवेशी मंडियों में जानवरों की फ़रोख्त में तेज़ी आई तो शहरियों ने छुरियां और बुग़्दे भी तेज़ कराना शुरू कर दिए। खुद कुर्बानी करने के लिए नई छुरियों की खरीदारी भी धड़ाधड़ की जा रही है। लाहौर से उमर याकूब रिपोर्ट करेंगे। बड़ी ईद पर पसंद का जानवर मिल जाना काफी नहीं, बल्कि अच्छा कसाई ढूंढना भी एक मुश्किल अमल है। छुरियां तेज करवाने वालों में ज्यादा तादाद उन अफराद की है जो मौसमी कसाईयों के सताए हुए हैं। शहरियों का कहना है कि अनाड़ी कसाई से जानवर ज़िबा कराने से बेहतर है कि वो खुद जानवर कुर्बान कर लें। पैसे ये अपनी मर्जी के मांगते हैं, फिर जानवर खराब कर देते हैं। कुछ को तो तकबीर तक नहीं पढ़नी आती। आम कसाई आते हैं जो पिंडों में से, वो जो से ना छुरी कहीं फेरते हैं, खाल कहीं से उतारते हैं, गोश्त कहीं से उतर जाता है। औजारों की तैयारी में मसरूफ दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं, जिनका काम खूब चल रहा है। लोग आते हैं औजार तेज करवाने के लिए, हम उनको औजार तेज वगैरह करवा के दे रहे हैं। जिनका कोई मिस वगैरह होता है या खराब हो जाता है, वो उसकी जगह नया ले लेते हैं। जब पैसों की बारी आती है तो वही हाल जी, हमने तो पिछले साल यही पैसे दिए थे। महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर, औजार और पेशावर कसाईयों के दाम सब में इजाफा हो चुका है। ऐसे में भी शहरियों का ईद उल अज़हा के हवाले से जोशो जज्बा काबिले दीद है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ उमर याकूब, समा, लाहौर। और नमकीन ईद पर लजीज पकवान बनाने हैं तो जेब हल्की करना पड़ेगी। ईद से पहले मुनाफाखोरों ने सब्ज मसालों की कीमतें भी बढ़ा दी। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। फातिमा शिराजी की रिपोर्ट।
مزے مزے اور چٹپٹے پکوانوں کے لیے سبز مسالہ بہت ضروری ہے، لیکن عید سے قبل دھنیا، پودینہ، ادرک، پیاز، لیموں کی قیمتیں آسمان چھونے لگی۔ ہر پکوان کی ضرورت پیاز 100 روپے کلو، لال لال ٹماٹر کے لیے لال لال نوٹ بھی مسٹ ہے، لہسن 200 روپے کلو، ادرک تو 3 سینچری بھی کراس کر چکی۔ سب سبزیاں، مسالہ جات، پیاز، لہسن، ادرک، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ بازار میں اگر ٹماٹر بک رہے ہیں 120 روپے کلو، یہ بیچ رہے ہیں 200 روپے کلو، پیاز بک رہا ہے بازار میں 80 روپے کلو، یہ بیچ رہے ہیں 120 روپے کلو۔ عید سے پہلے 60-70 روپے تھے، آج ایک دن پہلے یہ 140 روپے دے رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ریٹ جاری تو کیا گیا، مگر دکانداروں کی منمانیاں جاری ہیں۔ 150 اس لیے ہوا کہ کیونکہ دن تہوار ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی پیٹ ہے، عوام کہتی ہے سستا کرو، منڈی میں سستا ہوگا تو ہم سستا کریں گے نا۔ شہری سبز مسالہ جات کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ جانور قصاب تو مہنگا ہے ہی، مگر عید سے قبل سبز مسالہ جات کی بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ کیمرہ مین گلریز منشا کے ساتھ فاطمہ شیرازی، سما، لاہور۔ اور خواتین کی بازاروں میں شاپنگ آخری مراحل میں آ گئی ہے۔ کپڑے جوتے خریدنے کے بعد لاہوری کڑیاں گورے گورے ہاتھوں پر حنا کے رنگ سجانے کے لیے مہندی کے سٹالز پر پہنچ گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہی ہیں عائشہ عطا۔ جی بالکل، عید قربان کی مناسبت سے مرد حضرات جہاں معاشی منڈیوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، وہیں پر اگر خواتین کی بات کی جائے تو وہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں موجود ہیں، اور خواتین کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت لبرٹی میں موجود ہے۔ میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر خواتین جو ہیں وہ مہندی کے اسٹال پر مہندی لگوانے میں جو ہے وہ مصروف نظر آ رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ بچیاں بھی جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہے۔ خواتین کی تیاری جو ہے وہ تو آخری مراحل میں جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ کپڑے بھی لے لیے، میچنگ جوتیاں بھی لے لی، لیکن مرحلہ جو ہے وہ اب چل رہا ہے میچنگ جیولری کا اور ساتھ ہی ساتھ چوڑیاں خریدنے کا۔ تو خواتین جیسے جیسے جو ہے وہ دن گزرا، شام ہوئی، اور اب جیسے جیسے رات جو ہے وہ ہوگی، خواتین کی بڑی تعداد جو مزید گھروں سے باہر نکلیں گے اور نہ صرف اس موسم کو جو ہے وہ انجوائے کریں گے بلکہ اپنی عید کی جو شاپنگ رہ گئی ہے اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ عید کی تیاریوں کا یا شاپنگ کا وہ رات گئے تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جی، الزام تراشیاں، بیان بازیاں، دعوے، وعدے، جلسے، تقریریں، عموماً یہی سب سیاستدانوں کی پہچان سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں جناب۔ عید قربا کو ہی لیجئے، ارکان پارلیمنٹ عید کیسے گزارتے ہیں، بتا رہے اسلام آباد سے ٹکا خان ثانی۔ سارا بانٹ دیتی ہوں، حصے کر کے میں خود ذاتی طور پہ جاتی ہوں اور میں اپنے ہاتھ سے غریبوں کو دے کے آتی ہوں، اس سے مجھے بڑی روحانی تسکین ملتی ہے۔ قیمہ وغیرہ ہے اور خاص طور پر کلیجی کی جو آئٹمز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑے شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں اور ہمارے دوست بھی انجوائے کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ پلاؤ بن جاتا ہے، جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے وہ تو بانٹ دیا جاتا ہے۔ بیٹیاں بھی اپنے سسرال سے واپس آ جاتی ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں گھروں میں، تو اس دن جتنے پکوان یعنی کہ 2-4-3 جو بھی بچوں کے لیے پکاتے ہیں، اور خاص طور سے کوفتے جو ہے نا میرے بچوں کو بہت پسند ہے۔ گوشت کا پلاؤ بناتی ہوں، نمکین گوشت بناتی ہوں، گوشت روسٹ کرتی ہوں، بڑے گوشت گاڑے کے گوشت کی حلیم بناتی ہوں، پائی بناتی ہوں۔ مریم بریانی بہت اچھی بناتی ہے۔ بریانی پکاتے ہیں، خود پکاتے ہیں۔ اس دن ہمارے گھر والے کہتے ہیں گھر والیاں پکائیں، ہاں تو اس دن گھر والیاں پکاتی ہیں، پھر شام کو بڑے بھائی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں۔ گوشت جو ہے کبھی نمکین بنا دیا جاتا ہے، اور وہ مرچ مسالے والا تو پہلے دوسرا دن ہوتا ہے کہ جس میں گوشت کھایا جاتا ہے، تو وہ اتنا ہی استعمال کرتے ہیں۔ صحت سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا گوشت استعمال کرتے ہیں۔ قربانی کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو جتنا حصہ بنتا ہے ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا، ان کو دے دیتے ہیں، اس لیے اس دن ہم سبزی نہیں بناتے ہیں۔ جیسے نمکین عید پر سیاست کی کڑواہٹ ماند پڑ جاتی ہے، ویسے ہی ارکان پارلیمنٹ بھی اپوزیشن اور حکومت کی صفوں سے نکل کر چٹورا پارٹی بن جاتے ہیں اور پھر اپنوں کے ساتھ خوب مزے اڑاتے ہیں۔ کیمرامین رحیل قریشی کے ساتھ ٹکا خان ثانی، سما، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ اور راولپنڈی کے بس اڈوں پر اپنے آبائی علاقوں کو جانے والوں کا رش لگا ہوا ہے۔ کسی کو مہنگے کرایوں کا شکوہ ہے تو کسی کو سیٹ نہ ملی۔ اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے جان جوکھوں میں ڈال دی۔ عمر آصف رپورٹ کریں گے۔
عید کا مزہ تو اپنوں میں ہے۔ راولپنڈی کے پیر ودائی جنرل بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں یہ مسافر بھی جلدی جلدی اپنے آبائی گھروں کو جانا چاہتے ہیں، لیکن عید پر یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں۔ کرائے بڑھنے کے باوجود سیٹ ملنا قسمت کی بات ہے۔ کرایہ تقریباً ہاف بائی ہاف بڑھا دیا گیا ہے، یہ سواریاں بہت زیادہ ہے اور رش اتنا زیادہ ہے، ہر بندہ گھروں کو جانے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ سیٹ نہیں مل رہی، میں تقریباً 4 گھنٹے ہو گئے ہیں ادھر کھڑا ہوں، ٹکٹ نہیں مل رہی ہے۔ کرایوں میں اضافہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز بھی تاحال نقصان کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پہلے کرایہ جو لوگ دے رہے تھے 3000، ابھی 5,500 کرایہ ہو گیا اور اسی میں بھی گاڑیوں کو نقصان ہے۔ اتنے رش کے باوجود ٹرانسپورٹ اڈوں پر نہ تو کورونا SOPs کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ ہی مسافروں کی حفاظت کا۔ شہری بسوں کی چھتوں پر بھی سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ عمر آصف، سما، راولپنڈی۔ وفاقی پولیس نے عید سے پہلے شہریوں کو عیدی دے دی۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں سے چوری ہونے والی 25 گاڑیاں برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی۔ گاڑیاں دوبارہ ملی تو مالکان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ عادل تنولی کی رپورٹ۔ ہمارا گاڑی تقریباً 8-9 مہینے بعد ملے ہے، ہمیں ان کی محنت کی وجہ سے ہمیں گاڑی واپس مل گئی، ورنہ ہم تو یقین نہیں تھا کہ مل جائے گی۔ گاڑی ہو یا کوئی اور سواری، موج اس کی جس کے پاس ہو، یہ شہری گاڑی چوری ہونے کے باعث گزشتہ 9 ماہ سے اس خوشی سے محروم تھا جو اسے آج ملی۔ اسلام آباد پولیس نے کار لفٹرز گینگ کو پکڑ کر 25 گاڑیاں مالکان کے حوالے جو کر دیں۔ جتنے بندوں کو آج گاڑی ملی ہے یہ ایک خوشی کی بات ہے، کیونکہ عید بھی آ رہا ہے، گاڑی بھی ملا ہے، یہ تو بہت VIP کام ہو گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے کار چوری میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا، جن کی نشاندہی پر گلگت اور خیبر پختونخوا سمیت مختلف علاقوں سے 25 گاڑیاں برآمد کی گئیں۔ گاڑیوں اور کاغذات مالکان کے حوالے کر کے ان کی عید کی خوشی کو 4 چاند لگا دیے گئے۔ جتنی بھی لوگوں کا یہاں پہ نقصان ہوا ہے، جو بھی ان کی گاڑیاں گئی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی نقصان ہوا ہے جس کا، اسلام آباد پولیس کی دن رات یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ سے ان کا جو مال مسروقہ ہے، جو ان کی تھیفٹ پراپرٹی ہے، انہیں واپس لا کے دیں۔ کار لفٹنگ میں گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے، جلد ہی مزید گاڑیوں کی برآمدگی بھی متوقع ہے۔ کیمرامین حسیب ملک کے ساتھ عادل تنولی، سما، اسلام آباد۔ اور گلوکارہ شمائلہ حسین کا مداحوں کے لیے عید کا تحفہ، نیا میوزک البم جاری کر دیا۔ دل کے تار چھیڑ دینے والی موسیقی، شاعری اور مدھر آواز نے سننے والوں کے دل موہ لیے۔ لاہور سے نوین علی رپورٹ کریں گی۔ کو بڑھنے نہ دو، حد ادب رہنے دو، زندگی میں تلخیاں ختم کریں، روٹھوں کو منائیں، یہ پیغام دیا ہے معروف گلوکارہ شمائلہ حسین نے اپنے نئے البم میں۔ بات کو بڑھنے نہ دو۔ میری طرف سے تحفہ ہے عید کا۔ البم کا نام ہے گلموہر سے، اور مجھے تقریباً 1-1.5 سال لگا۔ لانچنگ تقریب میں شریک ڈائریکٹر سرمد کھوسٹ اور اداکار نعمان جاوید نے میوزیکل البم کو خوب سراہا۔ موسیقی میں الفاظ جو ہیں ہمارے ہاں خاص طور پہ صرف آپ انسٹرومنٹل جو ہے اس کا وہ بیڈ اس پہ نہیں ریلائی کر سکتے۔ Just a marvelous rendition of his poetry۔ تقریب کے شرکا نے شمائلہ حسین کی کاوش کو عید کا تحفہ قرار دیا۔ کیمرامین گلریز منشا کے ساتھ نوین علی، سما، لاہور۔ اور ہر کوئی عید کی خوشیاں اپنوں کے ساتھ منانا چاہتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان خوشیوں کے راستے میں آنا کے ایسے بت آڑے آ جاتے ہیں جو ٹوٹ ہی نہیں پاتے۔ ارشد علی کی رپورٹ۔ عید ہو یا شب برات یا کوئی اور تہوار، بچوں کی خوشیاں تو والدین کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر جیون ساتھی راہیں جدا کر لیں تو قیامت معصوم بچوں پر ٹوٹتی ہے۔ عدالت کی راہداریاں اور در و دیوار والدین کے چکر اور بچوں کی اداسی کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں کھلا لیے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کی تربیت پہ بہت محنت کرتے ہیں اپنی، ان کو تو سکھاتے ہیں کہ سسرال جا کے ایسے رہنا ویسے رہنا، لیکن لڑکوں کی تربیت پہ ہم بالکل کام نہیں کرتے ہیں۔ میرے بچے ادھر آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اب بچوں کے بنا نہ عید ہوتی ہے نہ شب رات، کوئی تہوار نہیں منایا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب میں خود بہت پریشان ہوں کہ بچوں کے لیے اب کیا کروں۔ قانونی ماہرین بچوں کے مستقبل کی خاطر والدین کو ضد چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اپنی انا کی خاطر ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں اور اپنے بچوں کا نہیں سوچتے۔ یہاں پہ ملاقات کے لیے بچے بیچارے سفر کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی خوشیاں والدین کی باہمی لڑائیوں کی نظر ہو چکی ہیں، یہ فریقین کو سوچنا ہوگا۔
नन्हे मुन्ने ये बच्चे हमारे माशरे के वालिदैन को सबक दे रहे हैं कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी अना की कुर्बानी ज़रूर दें। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बरतानिया के नए वज़ीर आज़म और कंजर्वेटिव पार्टी के नए कायद के लिए सियासी जंग का मैदान सज गया है। टोरी पार्टी के 12 उम्मीदवार अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें साबिक वज़ीर सेहत साजिद जावेद और साबिक वज़ीर ख़जाना भी शामिल हैं। बोरिस जॉनसन ने वजारत उज़्मा क्या छोड़ी, हुक्मरान जमात टोरी में खाना जंगी का आगाज हो गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले सीनियर कंजर्वेटिव रहनुमा टॉम टू गैनेट हट ने वजीर आजम का इंतखाब लड़ने का ऐलान किया। कहा, फौज और पार्लियामेंट में खिदमत सर अंजाम देने के बाद वजीर आजम बनकर खिदमत करूँगा। 52 साला पाकिस्तानी निजात साजिद जावेद भी इस दौड़ में शामिल हैं। साजिद जावेद जून 2021 से वजीर सेहत के ओहदे पर फाइज थे। वो वजीर खजाना भी रह चुके हैं। वजारत दाखिला समेत बिजनेस, कल्चर और हाउसिंग के महकमों के सरबराह भी रहे हैं। 42 साला साबिक चांसलर ऋषि सोनक भी मैदान में उतर आए। अपने एक बयान में कहा कि मुल्क को एक बड़े चैलेंज का सामना है। ऋषि आपका एतमाद बहाल करेगा। टोरी लीडरशिप के 12 उम्मीदवार मुहिम के दौरान एक दूसरे के बखिए उधेड़ रहे हैं। बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क और ट्विटर की राहें जुदा हो गई। एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने का मुआहदा ख़त्म कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एलॉन मस्क ने जाली अकाउंट्स की तफसीलात फराहम ना किए जाने पर मुआहदा ख़त्म किया। उन्होंने कहा, ट्विटर के 2 आला अहदेदारों को बरतरफ करने के फैसले ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मुआहदा ख़त्म होते ही ट्विटर के शेयर 6% गिर गए। ट्विटर के चेयरमैन ने एलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। रवा साल अप्रैल के आखिर में एलॉन मस्क और ट्विटर के दरमियान 44 अरब डॉलर्स में सोशल मीडिया कंपनी खरीदने का मुआहदा तय पाया था। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान गोल्फ टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका ने 2 विकेटों पर 184 रन्स बना लिए। मैच के दूसरे दिन श्रीलंकन कप्तान ने 86 रन्स की इनिंग्स खेली। कौशल मेंडिस 84 और एंजेलो मैथ्यूज 6 रन्स बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलवी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 364 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। स्टीव स्मिथ ने 145 रन्स बनाए।